First 16 sutras we had taken for this module. Samadhi Pad, Sutra number 1 to 16. जिनमें से we have seen up to Sutra 13, I believe. Tatra sthitau yatnaha abhyasa. Are we working on that? Because if we don't work on that, then this whole study is only an intellectual. So it is pointless unless you put it into practice. Tatra sthito yatnaha abhyasa. Whatever little bit you can, to be in that state, to be in the state of non-complexity. When we were young in college, one of my friend's mother always used to tell us, म्हणजे तुम्ही मुलं साधी गणित कठीण करून सोडवता. तुम्हाला सवय लागली आहे साधी गणित कठीण करून सोडवायची. Which was so true. We don't like simple mathematics. We like complicated things. So get rid of the complexities, keeping it simple. Tatra sthito yatnaha abhyasa. To be in that mental state with effort is abhyas. So we have gone through all this. The next Patanjali is saying, and that abhyas, because you're up against something hardened over the years, a hard nut to crack. Which is the hardest nut to crack for you? Your mind. Your mind is the hardest nut to crack because it has hardened over a period of eons, by behaving in the same concatenation. Concatenation means the chain of thoughts. So Patanjali is saying, because it is a hard nut to crack, you will have to keep at it. Satu dirgha kala nairantarya satkara asevitaha drudha bhumihi. A very, very useful sutra. You see, one thing you remember, but this is perhaps the most important thing where change in behavior is concerned. Okay. All the psychologists also should remember this. जो समोपदेशक रहते हैं ना, counselors, all the counselors should remember this. What Patanjali is mentioning here, that you cannot rub off the old patterns. If you draw something wrong, if you make a mistake in drawing, you have a sheet and a pencil and you're drawing something. If you make a mistake, you also have a provision of a rubber by which you can just wipe it clean, or a duster for a blackboard, a wiper. You can just wipe that thing clean and rewrite something and write something new on it. That doesn't happen as far as your brain's behavioral patterns are concerned. There's only one thing that happens, that they can be active or they can be inactive. Do you understand? They don't die. You cannot rub them off. Please understand this. This is extremely important. Your set patterns of your brain, the neural patterns in which the manner in which you think, and you have been thinking in that manner for years together, for ages, for, as I said, for eons, for births together. They're so hardened. It's very easy for you to slip into them and behave in the same old way, think in the same old way, feel in the same old way,
act in the same old way and suffer the results in the same old way. Remember this sequencing. See, Yoga Sutra is a very deep psychology. You have to look at it from that point of view, and it is life-changing. Believe me, it is life-changing. If you're not happy with the current circumstances of your life, they are the consequences of your own actions. You have to accept this first. You have to accept that whatever consequences you are facing right now at this juncture in your life is the result of your actions. Just think about it. I mean, you don't need any rocket scientist to explain this to you. If you just think and think impartially, without prejudice, you will realize that whatever are the consequences of your act in your life right now are the result of your actions. If actions would have been different by you, the consequences would have definitely been different. It's a matter of common sense. Understand? So your actions have given rise to these consequences. So if you're not happy with the consequences, it means that those actions were somewhere self-defeating. Why do you commit self-defeating actions? You commit self-defeating actions because there are dysfunctional emotions behind them. Always remember, emotions prompt you to act. You act out of emotions. Now, those emotions are called dysfunctional when you map them, if you map your emotions on a scale from 0 to 10, or in center there is 0, that is neutral, that is normal behavior, and then left side there is -5, and here it is +5. So where is your emotion? Where does your emotion lie? That decides whether it is functional or dysfunctional. Because you're going to act out that emotion. Your karmas, all your karmas have emotions behind them. And there are thoughts behind the emotions. Thoughts come first, emotions come later. You do not realize that difference of time in them because they happen very quickly. You feel the emotion, you feel the surge of emotion, but you forget that there is a thought behind that surge of emotion. Without the thought, emotion cannot come. So if the emotion is dysfunctional, which means the thought behind it is dysfunctional. The thought behind it is dysfunctional means the belief from which that thought is arising is irrational. Now you see the connectivity here. You're not happy with the consequences of your life, which means your action has been self-defeating, which means there was a dysfunctional emotion, which means there was a dysfunctional thinking process, which means the belief is irrational. Unless you convert that irrational belief into rational belief, the consequence, which is the end product, is not going to change. So here Patanjali is asking you to begin at the root cause. And he's simplifying it for you. He's saying that your set thought patterns, thinking patterns are not just to be rubbed away. They cannot be wiped out. They are going to be there. They can just be put in they can be put, जैसे गैस बंद कर दिया, गैस चालू था, गैस बंद, दो ही चीजें हो सकती है, तो गैस चालू है तो गैस बंद। हाँ, वो चालू होने के बाद उसमें और कंट्रोल है, स्लो, मीडियम, हाई, मृदु, मध्य, अधिमात्रा, उसके बारे में पतंजलि ने बोला हुआ है। लेकिन फंडामेंटली वो चालू है या बंद है, ये दो ही चीजें हैं।
तो अगर इसको अगर बंद करना है तो दूसरा 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 गैस चालू होना चाहिए, क्योंकि गैस तो हमेशा चालू रहेगा, कोई ना कोई बर्नर शुरू रहेगा। समझे क्या? पूरा बर्नर बंद मतलब तुम खत्म, तुम्हारी बत्ती गुल, तुम ऑफ, ऑफ हो गया तुम। ओके, तो जब तक कि तुम ऑफ नहीं होते, that is the term my maid always uses. So when somebody pops up, off, off हो गया. I like that term, off हो गया. Okay. So unless you become off, some burner is going to be on. Now if you इसको बंद कर दिया तो वो दूसरा चालू होने को मांगता है, नहीं तो काम नहीं जमेगा। तो वो तो दूसरा जो चालू होने को मांगता है जो है, let that be a rational burner. So a rational belief. What is a rational belief for us? A belief which is based on yama niyama. Whether I am following my yama niyama or not, whether I am following my asan or not, what is the purpose of asan, whether I am following Ashtanga Yoga or not, whether I am on the path or not. Because the first sutra, Atha Yoga Anushasanam, we have taken a vow with Patanjali. He has taken a vow, we have taken a vow. तो वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सतु दीर्घ काल, ये जो प्रैक्टिस जो है ये तेरे को दीर्घ काल करना है, बिकॉज वो बर्नर जो ऑफ करना है ना, वो ऑफ नहीं होगा इतने आसानी से। और ये जो जिसको ऑन रखना है वो ऑन भी नहीं रहेगा इतने आसानी से, अनलेस वो दीर्घ काल होगा। दीर्घ काल मतलब एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। दिस दिस थिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, कि इसको बंद करना है, इसको चालू करना है। ये डेली निरंतर मतलब ये रोज करना पड़ेगा, मतलब जिसमें और तुम्हारे वो एक्टिविटी में और तुम में कभी अंतर ना पड़े। जैसे सूरज निरंतर उगता है क्या? निरंतर का अर्थ ऐसे समझो, सूरज निरंतर उगता है क्या? हाँ। तुम सांस निरंतर लेते हो क्या? हाँ। मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दैट इट हैज टू बी प्रैक्टिस निरंतर। To understand the term nirantar, you give it an analogy. Does the sun rise every day? Yes, nirantar. Do you breathe all the time? Yes, nirantar. That is the meaning of nirantar. So this practice, matlab, it should become your constant companion. Nirantar means it should become your constant companion. This practice has to become your constant companion. Because the other practice has been your constant companion all these years. That thinking pattern, है ना? That thinking pattern has been your constant companion. You are addicted to that thinking pattern. It has been your constant companion for all these years. Now, how can you, and now you know that you cannot rub it off. So, what is the method to get away from it? उसको ऑफ करना है, इसको ऑन करना है, तो इसको वो ऑन जो है वो तुमको कंटिन्यूस करके रखना पड़ेगा कॉन्शियसली, तब वो बंद होगा, बंद रहेगा। कॉन्शियसली बंद रखेंगे, इसको कॉन्शियसली ऑन रखेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। If you are able to do this, that itself will be a miracle. So you are the maker of the miracle. And what is a miracle? कि उसको ऑन रखना और इसको ऑफ रखना, यही मिरेकल है। And if you are able to do that, rejoice in it, dance. Go in your balcony, on your terrace and dance. Scream, happy, because that is a miracle. You would have cracked the nut. And that is why Patanjali is saying, Dirgha Kala Nirantara. And then the third word he uses is Satkara Sevita. Satkara Sevita means having faith. Shraddha Purvak.
What Shraddha? When Shraddha means that this Ashtanga Yoga is going to see me through this ordeal. Yama Niyama, Asana Pranayam, Pratyahar. This sadhana will see me through this ordeal, this faith, unflinching faith. Without faith, you can't do it. Because only when faith would be there, would you practice it reverentially. So he has used the word satka, very important word. Reverentially. When you practice something reverentially, the goal is always noble. Otherwise, it could be ignoble. You might be practicing intensely, but the goal may be ignoble. But when you practice reverentially, the goal is always noble. So for that reverence, you require Shraddha, unflinching faith. So that is why he has used the word Satkara Sevito, that have faith. You are going to fail. The task will look insurmountable. कि कितना कोशिश करोगे इसको ऑफ करने का, उसको ऑन करने का, ये ऑन होगा नहीं और ये ऑफ होगा नहीं. कोशिश कोशिश कोशिश. इसलिए उन्होंने पहले दीर्घकाल बोला, मरने तक यही करने का आहे. पण त्याच्यामध्ये गोडी निर्माण होईल बघा तुम्ही. आता विपरीत गोष्टीमध्ये गोडी असते. अक्लिष्ट वस्तूंमध्ये गोडी निर्माण होईल. आता क्लिष्ट वस्तूंमध्ये गोडी. गिव इट टाइम. इसलिए उन्होंने बोला निरंतर, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस एंड सत्कारा से भी, पूरी श्रद्धा के साथ. और फिर उसे दृढ़ भूमि होना ही है. मतलब तुम्हारे चित्त भूमि में, दृढ़ भूमि मतलब नाउ द न्यू न्यूरल ट्रैक्स will be created in your brain, and then your thoughts will flow according to the new patterns. That will be so liberating for you. Let it be any walk of life. Whatever sutras talk, it is very generic. The beauty of the sutras is that it is generic. It is applicable to everybody, irrespective of what you are thinking about. Because each one of you has a different issue of life in life. Each one of you has a different issue. किसी को ये है, किसी को वो है. But these are the panacea for everyone. यहाँ पे शांकर विवरणम में, one commentary by Shankar, not the Shankaracharya but another Shankaracharya, उन्होंने संस्कारा से भी तो यह वर्ड डाला हुआ है. मतलब वो पाठभेद से उनका सूत्र है, सतु दीर्घ काल निरंतर संस्कारा से भी तो दृढ़ भूमि ही. तो वो भी बराबर है कि जब तक कि वो संस्कार कायम नहीं हो, जब तक कि वो संस्कार डीपन नहीं, तब तक के ये दीर्घ काल और निरंतर होने की अपेक्षा है. ओके, तो ये होगा अभ्यास के बारे में. अब ये जैसा अभ्यास तुम्हारा होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, उसके साथ साथ और एक प्रक्रिया होने लगी. काय का अभ्यास हो रहा है? यमों का. यमों को मेरे सोच में शामिल करने का अभ्यास हो रहा है. टू इम्बाइब द टेनेट्स ऑफ यमा एंड नियमास in my thoughts, in my beliefs. This is the study that is happening.
as it will continue to happen, another thing, a very interesting thing will begin to happen at the same time. And next sutra talks about it. Drushta anushavika vishaya vitrushnasya vashikara samgnya vairagyam. So it is a two-edged sword. One edge is abhyas and the other edge is vairagya. Vairagya means, in simple word, detachment. But remember, your chitta cannot exist without attachment. If chitta is detached from everything, then it will dissolve in Prakriti and you will get moksha, you will get kaivalya. That is the final stage where you are liberated, no more coming back. You are merged. This particular speck of your Jivatma will become an ocean. Okay, but that is at the ultimate point. Till then, this chitta has to be attached to something. Now, that is the whole ball game we are working on, right? To change that attachment from क्लिष्ट to अक्लिष्ट, है ना? जो माया में घुसाएगा और संसार के चक्र में घुमाएगा वो क्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट जो लिबरेशन की तरफ मेरे को और लेके जाएगा, वो क्लिष्ट वृत्ति। लेकिन अटैचमेंट इज देयर, तो यहाँ पे डिटैचमेंट begets attachment. If something gets detached from something whose very nature is attachment, it has to get attached to something else. समझिए? तो वैराग्य डज नॉट मीन कि वो एकदम उसने पूरा सब रिनाउंस, वो सब डेफिनेशन है, रिनाउंस कर दिया, ये रिनाउंस कर दिया, वो अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है उसका मीनिंग। उसका मीनिंग ये है कि अब वो और दूसरी चीज से अटैच हो गया है। वो अटैच किससे हो गया है? उससे। कबीर जैसा, कबीर बाजार से डिटैच हो गया था, लेकिन बाजार में ही खड़ा रह के नाचता था खुशी से, क्योंकि वो किसी और चीज से अटैच हो गया था। तो दैट अटैचमेंट, दैट विल बिगिन टू डेवलप। दैट इज हाउ वैराग्य डेवलप्स। यहाँ पे उन्होंने वशीकार करके स्टेज बताई। दैट वैराग्य व्हेन दृष्ट means all that you see. What all you see around you? Just think. What all you see around you, and imperceptibly, subtly, what all you want from that which you see around you. Think about it. Huh? 24/7, you're seeing something or other around you, right? Your eyes are open. You're at home, you're outside the home, you're in the building, you're in the lift, you're walking on the street, you're driving, you go here, you go there, you go to the office, you go to movies, mall, shop, kirana wala, sabji wala, 24/7, drushta. These are all the drushta things. और वो सब दृष्ट में से subtly, imperceptibly, you are wanting something. Are you not? Are you not wanting something which is good? The good things. ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मेरे पास रहता तो अच्छा रहता, ये मुझे चाहिए, मैं ये लूंगा, मैं कल वो लूंगा, परसों, अभी प्लान करता हूँ, ये वो, all the time. The drushta vishaya around you, they have captivated you, your psyche. They have captivated you. You don't realize it. मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमका फलाना फलाना, ये वो फलाना, can't stop. अच्छा, आंखें, चलो आंखें बंद कर लेते।
आंखें बंद कर ली अगेन, फिर भी इधर वो तो फिर तो अंदर का कैमरा चालू हो गया ना, मूवी चालू हो गया अंदर में। ये डायरेक्ट अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, कर लो बंद आके। मेरे पास तो अंदर में मूवी, इस तुम्हारे इससे भी बड़ा स्क्रीन है मेरे पास, तुम क्या मेरे आंख बंद करोगे? मैं तो उस पे, चलो मैं उस पे प्रोजेक्ट करने लगूंगा। और यहाँ पे तो मेरे को जो चाहे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, ये तो मेरे को लिमिटेशन देता है। वहां पे तो मेरे को जो चाहिए प्रोजेक्ट करूंगा, फुल यूटोपिया प्रोजेक्ट करता हूँ। तुम क्या बात करते, दैट इज ऑल दृष्ट। How attached we are to them. So Patanjali is saying all those Drushta and Anushravika. मतलब तुम विजुअलाइज, इमेजिन क्या करोगे? जो तुमने देखा है, जो तुमने देखा ही नहीं है उसको क्या विजुअलाइज करोगे? थोड़ी बहुत कल्पना कर सकोगे, लेकिन जो कुछ देखा होता है उससे, उसके आधार पर यू कैन विजुअलाइज मच मच मोर, मेनी मेनी फैंटास्टिक थिंग्स. So Patanjali is saying not only Drushta but Anushravika, जिनके बारे में तुमने सिर्फ सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है, तुम्हारे तुमको विजुअल परसेप्शन नहीं है उसका, लेकिन तुमने ऑडिबल है, किया है तुमने वो तो, ऑडियल ऑडिबल के, ऑडिबल परसेप्शन के आधार पर तुम विजुअल परसेप्शन बना सकते हो. तो ये सब जितना भी, ये सबके प्रति वितृष्णा. वितृष्णा, तृष्णा मतलब थर्स्ट, वितृष्णा मतलब टोटल थर्स्टलेसनेस. जब तुम्हारे चित्त में आएगा, उदित होगा, तो दैट स्टेट ऑफ डिटैचमेंट इज कॉल्ड वशीकार. क्योंकि अब कोई भी चीज तुम्हें वश में नहीं कर सकती, और जब कोई भी चीज तुम्हें वश में नहीं कर सकती, तब वो तुम्हारे वश में आ जाती है, क्योंकि वो तुम्हें वश नहीं कर सकती. वस्तुओं का ये स्वभाव होता है, बट वी आर नॉट, दैट कम्स इन योर कैवल्य पाद. विभूति में आता है वो, अपना विभूति पाद में आता है, नॉट कैवल्य, विभूति पाद में आता है वो. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. वी आर टॉकिंग अबाउट कि दृष्ट अनुश्रवी के जितने भी विषय हैं, जिनमें तुम 24/7 यू आर इन अ सटल आसक्ति. इट्स वेरी सटल, बट इट इज देयर. इट्स रनिंग इन योर वेन्स, इट्स रनिंग इन योर ब्लड. वो जब खत्म हो जाएगी, तब तुम वशिका नाम के वैराग्य स्टेट में रहोगे. उसके पहले 3 स्टेट्स आती है, उनके नाम है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉट देम डाउन. उनके नाम है यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय एंड वशीकार. दीज आर द 4 stages of detachment. Yatman, the first is known as Yatman. Yatman stage is nothing but you are able to distinguish between what is klishta and what is aklishta. This itself is a very big achievement. Now, how we started with the abhyas, tatra sthito yatna abhyasa, right? So the abhyas is training us to be in aklishta vrittis, to stay in aklishta vrittis and not slip into the klishta vrittis. तो इसके लिए पहले तो ये डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना कि भैया क्लिष्ट कौन सी है, अक्लिष्ट कौन सी है. तो ये डिफरेंशिएट करना कौन से बेसिस पे? अगेन यम नियम के बेसिस पे, है ना. तो यम नियम के बेसिस पे व्हेन आई एम एबल टू डिस्टिंग्विश देम, दैट स्टेट ऑफ डिटैच, और उससे ऑटोमेटिक डिटैचमेंट होने लगता. दैट स्टेट ऑफ डिटैचमेंट
is known as यतमान, यतमान वैराग्य। कि अब मैंने, एंड बी हैप्पी विथ इट, बी प्राउड ऑफ इट, कि एटलीस्ट तुमने डिस्टिंग्विशिंग तो चालू कर दिया है यार। लोग पूरी जिंदगी लोगों की निकल जाती है, कोई डिस्टिंग्विश वगैरह कुछ नहीं करता, मर जाते, फिर आते हैं, फिर मरते हैं, फिर आते, फिर मरते, यही चालू है। अपन भी वैसी चीज। लेकिन अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय वर्च्यू ऑफ some good karmas we must have done, that we came on this path। और ये लाइफ में ये एक्सपोजर मिल गया अपने को इस शास्त्र का। दिस इज आई एम टेलिंग यू, दिस इज प्रोविडेंस। बिलीव मी, दिस इज our being on this path is providence। This is not accidental, believe me, it is not accident। हमने कुछ तो अच्छे काम किए हैं कि हम इस बात पे आए हैं, एंड बी assured ऑफ दैट। तो ये पहली स्टेज मिल जाएगी, यतमान हो जाएगा तुम्हारा, अभी ये लाइफ में हो जाएगा यतमान, कि यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि यार ये क्लिष्ट है, ये अक्लिष्ट है। उसके बाद में ना व्यतिरेक आता है, सेकंड स्टेज, कि जहां पे एक्चुअल तुम जो क्लिष्ट है उनको ओमिट करने लग गए हो, इतनी ताकत तुम में आ गई है, और तुम मतलब वो क्लिष्ट के साथ में तुम्हारा डिटैचमेंट अभी होने लगा है, और अक्लिष्ट के साथ में अटैचमेंट होने लगा। मतलब दैट प्रोसेस इज स्पीडिंग अप नाउ, और उसमें तुमको थोड़ा सा एक्सपर्टीज भी आने लगा है, कि तुमको समझ में आया कि अरे यार ये क्लिष्ट है। तो पहले उससे डिटैच होने में बड़ा टाइम लगता था, तकलीफ होती थी, लेकिन अभी वो फट से डिटैच हो कर सकते हो, और ये जो अक्लिष्ट है उसके साथ अटैच्ड रह सकते हो, ये होने लगा है। दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ व्यतिरेक वैराग्य। तो पहला यतमान वैराग्य, दूसरा व्यतिरेक वैराग्य। और फिर ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि वो जो क्लिष्ट है वृत्तियां, अभी वो उदित नहीं हो रही, अभी पूरा अक्लिष्ट के साथ में अटैच्ड हो गया है चित्त, लेकिन वो जो क्लिष्ट जो है वो अभी दग्ध बीज नहीं हुई है। मतलब वो जैसे गैस बंद किया है, लेकिन वो कभी भी ऑन हो सकता है, वो ऑन होने की ताकत उसकी खत्म नहीं हुई है। मतलब जैसे बीज, बीज जब जल जाता है तभी वो अंकुरित नहीं होता। जब तक कि वो जला नहीं है, वो जमीन में पड़ा हुआ है, तो उसको कंड्यूसिव हवा, पानी, सब सूरज मिलेगा, तो वो ट्याव से ऊपर से निकाल के अंकुरित हो जाएगा। ये जो स्टेज है उसको एकेंद्रिय कहते हैं, वैराग्य। कि अटैचमेंट तो पूरी हो गई है अभी अक्लिष्ट वृत्तियों के साथ, लेकिन अभी तक वो दृष्ट और आनुश्रविक विषय जो है वो दग्ध भी नहीं हुए हैं, वो प्रसुप्त है, मतलब सोए हैं। लेकिन वो सोया हुआ शेर के समान भी हो सकते हैं। वो सोया हुआ शेर अगर जाग जाएगा तो ये जो सब है उनको खा जाएगा। इसके ऊपर एक आगे बहुत कैवल्य पाद में आखिरी में एक सूत्र पतंजलि ने दिया हुआ है कि यू हैव टू बी ऑलवेज चौकन्ना तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य। ऐसा एक कैवल्य पाद में सूत्र आता है कि तुम हाईएस्ट लेवल्स ऑफ समाधि में जाने के बाद भी तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि वो पुराना जो पुनः सोया हुआ शेर जग सकता है। लेकिन वो जो बीज जो प्रसुप्त अवस्था में जमीन में दबे हुए हैं, जब वो प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध बीज हो जाएंगे, जब इधर तुम्हारा अभ्यास बढ़ने लगेगा,
और ये सब कॉन्करेंटली हो रहा है। हाँ, रिमेम्बर, ये जो मतलब यहाँ पे तुम्हारा अभ्यास शुरू हुआ और यहाँ से वैराग्य भी शुरू हो गया। जैसे अभ्यास बढ़ रहा है वैसे वैराग्य बढ़ रहा है। तत्र स्थितो यत्न अभ्यास दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित। इधर हमारी लेवल आ गई कौन सी, यत्मान वैराग्य। और दीर्घ काल होने लगा है निरंतर सत्कारा सेवित, संस्कारा सेवित, ये हमारी लेवल आ गई यहाँ पे व्यतिरेक वैराग्य की। अभ्यास और दीर्घ काल होने लगा है, हम पहुंचे केंद्रीय। और जब अभ्यास बहुत ही दृढ़ भूमि जब हो जाता है, जब तुमको वो समाधि की अवस्थाएं प्राप्त होने लगती है, तब यहाँ पे जाके वशीकार वैराग्य आ जाता है। सो दे आर, इसलिए पतंजलि का सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध सूत्र है। सो दे हैपन कॉन्करेंटली। सिर्फ वैराग्य होगा अभ्यास, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों साथ, जैसे समझ लो कि वो एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। अभ्यास एक बाजू है, वैराग्य दूसरी बाजू है। बिल्कुल ऐसा समझ लो। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सूत्र नंबर 15। और आशित सर, एक बार जैसे these words ना, if you could just break it once and just tell, like दृष्टानु is what you're seeing, okay? श्रविक नो नो विषय नो 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 नो, दृष्ट, दृष्ट वन वर्ड, आनुश्रविक सेकंड वर्ड। दृष्ट प्लस आनुश्रविक, that is, that has made that दृष्टानुश्रविक। ओके, विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ओके, अनुश्रविका का मतलब क्या हुआ है? दृष्ट सुना हुआ, दृष्ट मतलब देखा हुआ, आनुश्रविक मतलब सुना हुआ। सुना हुआ, और हाँ, विषय विषय मतलब what are all those objects around, objects of this whole samsara, maya world, objects of the world. ओके। Vitrushnasya means total 100% thirstlessness। ये अभी इनकी आसक्ति जरा भी नहीं है, प्यास जरा भी नहीं है, वह जो अवस्था है। और उस अवस्था में तुमको अस्मितानुगत समाधि लग जाती है। वशीकार संज्ञा, मतलब संज्ञा मतलब नाम। ओके, सो माय संज्ञा इज अशित, तो अशित इज माय नेम। तो वैसा ये वैराग्य की जो संज्ञा है, इसको जो संबोधित करते हैं, वो वशीकार शब्द से संबोधित करते हैं। इस अवस्था में समाधि जो है वो अस्मितानुगत हो जाती है, मतलब सिर्फ अस्मि अस्मि का एक स्पंदन रहता है चित्त में। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबीज समाधि a yogi can achieve, अस्मितानुगत। इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। वहां पे सब कुछ दग्धबीज हो जाता है। फिर वहां पे एक ही चीज बचती है, और वो है कैवल्य, जो वो निर्बीज समाधि में उसे जाना है। तो निर्बीज जब अस्मितानुगत जो है, जो सिर्फ अस्मि का स्पंदन रहता है उसमें, कि आई एम दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं रहता है, तो अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास जब दीर्घ काल, वो भी क्योंकि सब अभ्यास दीर्घ काल निरंतर करना है, वो भी जब दीर्घ काल होने लगता है, तो पर वैराग्य उदित होता है उस योगी के चित्त में। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतुष्टम। अब उसको पुरुष ख्याति हो गई है। अब उसको ये दिख गया है, ये जो मैं आई एम कर रहा हूं, वो उसके पीछे भी क्या है, और उसके पीछे उसको ब्रह्म रूपता दिखती है। मतलब वहां पे उसको वो रियलाइजेशन होते हैं जो महावाक्य ऋषियों को जो हुए, जब हुए रियलाइजेशन, तो एक ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, दूसरे ऋषि ने कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा ऋषि एक स्टूडेंट के साथ था, तो उसने उसको कहा कि तत्वमसि, वही तू है। और तीसरा और एक डीप मेडिटेशन में था,
उसको पूरा उसको सब उसका अंतःकरण पूरा दिख गया, तो उसने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रज्ञा के पीछे जो है वही ब्रह्म है। तो वो चारों ऋषियों को वो स्टेट में वो रियलाइजेशन हुए, इसलिए वो उन्होंने उनके तरीके से बोल दिए, तो वो चार महावाक्य बन गए वेदों के। वो स्टेज में वो योगी रहता है वहां पे। तो उसको पुरुष ख्याति, ख्याति मतलब इररेफ्यूटेबल नॉलेज। वो स्टेज पे उसको जब वो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है, तो उसको वो इररेफ्यूटेबल नॉलेज हो गया है, साक्षात नॉलेज हो गया है। अपना सबका नॉलेज सुना हुआ है। अपन वी आर पैरट्स, यू नो, वी आर लाइक पोपट, पोपट रहा हो गया हम सब। जो सुना है, वो पढ़ा है, वो सब बोलते हैं, लेकिन उसने वो एक्चुअल साक्षात कर लिया, उसको ख्याति बोलते हैं। और पुरुष मतलब वो द सुप्रीम। अब पुरुष ख्याति हो गई है, उसको देख लिया उसने, साक्षात कर लिया। अब वो होने के बाद में ये जो त्रिगुण के कारण जो ये अस्मि अस्मि स्पंदन हो रहा है, क्यों हो रहा है? त्रिगुणों के कारण हो रहा है, प्रकृति के कारण हो रहा है। उसमें भी उसका वितृष्ण से आ जाता है, मतलब उसकी भी, उसकी अभी टोटल प्यास बुझ गई है अभी। बस अभी एक ही बचा है कि यार अभी विशाल बन जाओ, अभी महान बन जाओ, इन्फिनिट बन जाओ। ये छोटू सा ये खत्म करो अभी, ये आए आए आए, ये बहुत चिल्लर है ये। लेट्स बिकम इन्फिनिट नाउ। और वो छलांग लगा देता है, उसके बाद में फिर तुम नहीं बचोगे। समझे क्या? तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ ना, तुमको मोक्ष नहीं मिल सकता कभी, कभी, नेवर नेवर, नो, डोंट एवर ड्रीम ऑफ इट। यू विल नेवर गेट मोक्ष, because you are there, you know. As long as you are there, you're not going to get it. You'll have to dissolve. You'll have to become infinite. Okay. So on this wonderful note, we'll stop here.